ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਪਿੰਡ ਢਿੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢਿੰਗਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਆਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਆਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 4 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਾਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਜੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ठीक ठाक? बिल्कुल तो सचिन जी, और आज बड़ी खुशी है भी दोबारा ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ? जिस तरह तो आपको जानकारी है कि ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, हाँ जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास अपने नेटिव पशु भी हैं जी। तो जब 2003 में भारत सरकार ने बीटी कॉटन के लिए परमिशन दे दी थी, हाँ जी, उस दिन से हमने अपने पशुओं के लिए बाजार से मतलब बड़े हुए की खड़ हाँ जी। या बाजार से बड़े में इनको लाके देने बंद कर दिए थे। अच्छा जी, तो बीटी कॉटन का हम क्यों इनको दें? जी। तो उसके लिए ज़रूरी था भी अपना बीज लगाएं, अपना ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से उसको तैयार करें और वही इनको अपने पशुओं को खिलाएं। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦਾ? ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ? पुराना बीज जो मतलब अपना देसी कपास का RG8 है, पंजाब की अपनी किस्में हैं, हरियाणा की किस्म है, वही लगा रहे हैं। या अपना नरमा का जो पुराना बीज F1378 या जोर्ड जो आया था वो ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? वो बीज लगा रहे हैं जी। अभी तक। अपना जो खाकी नरमा है, हाँ जी, जो आज से 45 साल पहले लगाते थे, हाँ जी, हाँ। वो भी अभी तक हम लगा रहे हैं ਅੱਛਾ, जी। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਹੋ? पहली बात तो है, जब आप कुदरत के हाथ में छोड़ दें जी। तो कुदरत अपने आप कंट्रोल करती है। अगर कोई बीमारी या आपको नुकसान करने वाला कीड़ा आ रहा है तो उस कीड़े को कंट्रोल करने वाला, काबू करने वाला भी कुदरत ने पैदा किया है। जी। तो ज़्यादातर हमें बीमारियों से कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, और बाई चांस कोई आती है तो फिर उनके साथ एडजस्ट करना भी, वो भी जिंदा रहें, भले हम भी जिंदा रहें, हम उनको नुकसान ना करें, वो हमें नुकसान ना करें। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? जी। ਕਪਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਝਾੜ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਝਾੜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? देखिए जी, मतलब केमिकल प्रैक्टिसेस या जो हाइब्रिड बीज है हाँ जी, उनके मुकाबले इन बीजों का झाड़ तो कम है, जी। लेकिन अपने को बाजार से कोई इनपुट्स की ज़रूरत नहीं या खर्चा नहीं है, वो बचत है। अपना
एनवायरनमेंट हम सेफ रख रहे हैं, उसमें कोई कोई मतलब पोल्यूशन नहीं है। और जो खेत में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से हम उनको कीड़े या बीमारियों से रोकने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, मतलब जब ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने नेटिव बीज लगा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ मौसम के वातावरण के लिहाज से वो सही होते हैं, उसको झेलते हैं। कई बार बहुत मतलब एडवर्स कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन, उसमें आपके हाइब्रिड या बीटी कॉटन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनसे आपको फिर भी पैदावार मिलेगी। अच्छा। जी, क्योंकि ये इसी मौसम के लिहाज से बने इसी में बड़े पले बड़े। यहीं वो पले बड़े हैं, तो वो उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहता है। कम पानी है, गर्मी ज़्यादा है, बारिश कम है, बारिश ज़्यादा है, तो भी ये अच्छे से काम करेंगे। काम करेंगे, सर्वाइव करेंगे और पैदा भी देंगे। अच्छा जी, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਇਹਦਾ? शुरुआत में जब लेबर चार्जेस कम थे जी। या सस्ती लेबर मिल रही थी, हम्म। तो बीज अपना रख लेते थे और रुई कपास जो है वो बाजार में भेज देनी, या अपना कपड़ा सर्दी के लिए रजाई गद्दा बनवाना वो कर लेते थे। या कोई और प्यारा मित्र जो है वो बोलता कि हमें रजाई या गद्दे चाहिए, तो उनको दे दी जाती थी। पर धीरे धीरे जब महंगा हो गया था, तो फिर था कि बाजार में तो देना ठीक नहीं, क्यों ना मतलब रुई जो है उससे कपड़ा तैयार होता है, वो कपड़ा तैयार करवाया जाए। अच्छा। ये विचार जब मन में आया तो उसके लिए कपड़ा बनवाने के बारे में सोचने लगे, किस तरह से तैयार करवाएं। तो अपने यहाँ कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले सूत काटना होता है। हर घर में पहले चरखा चलता था, हाँ जी। हर गांव में खड्डी होती थी, हाँ जी। बुनकर होते थे। वो सारी चीज़ अपने यहाँ खत्म हो चुकी थी। हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पंजाब में वो सारा बिल्कुल खत्म हो गया था। हाँ जी। तो इसके लिए हम पूरे भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान घूमे, हाँ जी। किस तरह से वहाँ कपड़ा बन रहा है और हम अपना कपड़ा किस तरह से बना सकते हैं। हम्म। तो उनका जो देखा, वो उन लोगों के पास आज भी पुरानी तौर तरीका या वो सब आज भी बरकरार है, तो वहाँ लगातार कपड़ा बन रहा है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी। उस तरह की वहाँ सारी सुविधाएं हैं। मतलब रुई तैयार करनी है, उससे पूनी बनानी है, उससे धागा तैयार करना है, उनके पास सिस्टम था। सारा साधन है। अपने यहाँ खत्म हो चुका था। तो उसके लिए मतलब 3-4 साल तक हम अपना रुई इकट्ठी करते रहे, अच्छा। सेल नहीं किया। आखिर में एक आदमी मिला कि मैं आपको कपड़ा बनवा देता हूँ। अच्छा, इत्थे मिल गया। जी, पर वो कपड़ा तैयार हो रहा था यूपी में से, कहीं उसका धागा तैयार हो रहा था, कहीं वो कपड़ा पावर लूम पर तैयार हो रहा था। उस टाइम ये मन में आई कि ये अब कहाँ तैयार हो रहा है, कैसा हो रहा है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अखा ने सामने कराना जो। जो हमारे सामने और अपने हाथ से हो, तो वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो उसके लिए जो हम इतनी जगह घूमे थे, उससे थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि हमें अपना कपड़ा किस तरह से तैयार करना है। उसके लिए अपना सेटअप ही तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने करीब 200-250 औरतों को चरखा कातने के लिए तैयार किया। उन्होंने चरखा पर सूत बनाया, फिर उसको खड्डी पर कपड़ा बुनने के लिए चलाया। तो ये सब करते हुए काफ़ी हमें मतलब धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस हुआ, और उसमें आगे से आगे ज़रूरत के मुताबिक और सुधार भी करते गए, नया काम भी शुरू कर किया। और अभी अपनी पुरानी उस गांव की कला को बचाने के लिए, पुराने उन कारीगरों को उनकी कला को बचाने के लिए
अब पंजाब में ही अपना वीविंग स्कूल शुरू किया है, जहाँ लगभग 45 औरतों ने कपड़ा बुनने की ट्रेनिंग ली है। अच्छा जी। और नए लोग भी आ रहे हैं, और अपना जो पुराना खेस का अपना एक इसमें बड़ी वो खूबी है पंजाब की। हमने जब देखा घूम के, तो हमारे यहाँ की जो उनकी वीविंग टेक्निक है, वो देश में और दूसरी जगह नहीं है। उसको हनीकॉम्ब वीविंग कहते हैं। अच्छा जी। तो उससे अभी यहाँ जो वो नए काम सीखा है जिन्होंने औरतों ने, वो उससे तौलिया, चद्दर, खेस और ये सब बना रही हैं। तो कोशिश है कि इस काम को और अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और अपने समाज को, जो लोग इस कला को जानते हैं, उनको भी मतलब इम्पोर्टेंस मिले। अच्छा, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये बाजार और कस्टमर के लिहाज से दोनों तरह का कर रहे हैं। हमने अपने कपड़े को जयपुर से आगे बगरू में, जहाँ वो नेचुरल कलर से और हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, वो भी करवाया है। और उसकी लागत बढ़ती है, हम्म। तो लागत बढ़ने की वजह से फिर आम आदमी के लिए उसको खरीदना थोड़ा पहुंच से बाहर हो जाता है, या उनमें उतनी चमक नहीं होती जो इस चीज़ को आम कस्टमर खरीदना चाहता है, जो हम उसके आदी हैं। तो फिर उसके लिए हमें कीमत को कम रखने के लिए, और लोगों को जो चमक दमक चाहिए, उसके लिए अपने पंजाब में ही लुधियाना से भी हम उसको केमिकल कलर से भी करवा रहे हैं। लेकिन वो एजो फ्री है, तो केमिकल जरूर हैं, लेकिन वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं ਅੱਛਾ, है। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ, जी ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੁਸੀਂ उन- ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल, जी। उसमें कोई मतलब शक ही नहीं। और गलत बात करने का फायदा भी नहीं। कंज्यूमर्स का भरोसा और खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनको बिल्कुल बताया जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ज़रूरत के लिहाज से अब सब तरह का कपड़ा, मतलब बारीक मोटा खद्दर भी है, हाथ चरखे से कते हुए धागे का और हाथ खड्डी पर बना हुआ खद्दर भी है। अच्छा। जी, हम्म। मतलब खेस है, तौलिया है, छोटी मतलब चटाई वगैरह जो नीचे बिछाने के लिए टेबल मैट के तौर पर, वो भी है। और लड़कियों के जो कंधे पर रखने के लिए शाल टाइप या गमछा टाइप, वो भी। तो सभी तरह का। और जो काम करने वाली बुनकर जो महिलाएं हैं, उनको छूट है कि जो आप जानते हैं और जो कर सकते हैं, ਉਹ ਬਣਾਓ। वो आप कर दो। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? सबसे पहले तो ये है कि जब से बीटी कॉटन आया है, तो बीज का जो कुदरत का दिया हुआ है, उससे वो उसमें बदलाव, जीन चेंज किए गए हैं। वो हमारी ज़मीन के, हमारे वातावरण के लिहाज से भी सही नहीं है। जी। और फिर उसके बाद ये है कि बीज के लिए हर बार किसान को उन कंपनियों पर निर्भर करना पड़ता है, जी। तो वो भी सही नहीं था। तो हमारे अपने जो बीज थे, उसको हर साल खेत में सिलेक्शन करते हुए और अच्छा सुधार करते रहते थे। जी। तो वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी था। दूसरा, जो विदेशों में भी बहुत सारी डिमांड है नॉन बीटी, नॉन जीएमओ, नॉन हाइब्रिड के लिए, वो मांग करते हैं।
अच्छा, किहड़े-किहड़े देश अप्रोच करदे आ तुहानूं? किते टच कीता किसे ने? उसके लिए बिल्कुल हमारे पास यहाँ फ्रांस, जर्मनी, हाँ जी। अमेरिका, इंग्लैंड से भी लोग आए और वो चाहते हैं कि नॉन बीटी, नॉन जीएमओ, नॉन हाइब्रिड हमें मिले। ये 2011 में भी फ्रांस से लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि आप प्रोडक्शन करिए, और वो आप हमारी जो वंदना शिवा है उनके साथ उनका टाई अप था कि आप वो अपना सारा वॉल्यूम वहाँ दीजिए तो हम उसको परचेज करेंगे। जी। फिर अभी कोविड से 2 साल पहले जर्मनी का एक डिमांड थी, वो ऑर्गेनिक कॉटन का धागा चाहते थे जी। और उनका डिमांड बहुत बड़ी थी। उन्हें लगभग 10 टन धागा हर महीने चाहिए था। अच्छा, इन्ना नहीं हो सकदा। 10 टन का मतलब है हर महीने का, मतलब 120 टन साल का। हाँ जी। तो उसके बारे में यहाँ जब प्लानिंग कर रहे थे मेरे पास भी आए, तो मैंने उनको बताया कि ये आपको क्लस्टर बनाना होगा। अकेला पंजाब में नहीं, अकेले हरियाणा में नहीं, आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों स्टेट्स में लोगों को मिलकर तैयार करें। बहुत बड़ी लेवल पर प्रोडक्शन होगी, तब आप 120 टन धागा पूरा साल का दे सकेंगे। जी। जी, फिजिकली ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ-ਠਮਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ? मतलब बीटी कॉटन जो है वो, उसमें मतलब जीन बदला गया है, उसकी वजह से वो शरीर के लिए नुकसानदेह है, उसकी वजह से शरीर में खुजली, खाज, इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो फ्रांस से ही एक जो लोग हमारे पास यहाँ आए थे, वो फ्रांस में बच्चों के लिए मतलब रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करते हैं। जी। यूरोप में ज़्यादातर सिंथेटिक फैब्रिक चलता है, जी। लेकिन वो कॉटन फैब्रिक में डील करते थे। जी। तो उनको कस्टमर से शिकायत मिली कि आपके गारमेंट्स की वजह से हमारे बच्चों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, जी। स्क्रैची, रैशेज, इचेज वगैरह हो रही है। तो उन्होंने उसका जब डायग्नोस करवाया तो उसमें तो केमिकल रेजिड्यू तो आए हैं। सबसे बड़ा कारण रहा कि ये बीटी कॉटन है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बीटी कॉटन से हो रही है, ज़्यादातर उत्पादन बीटी कॉटन का हो रहा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो? तो उन्हें बताया गया कि ऑर्गेनिक कॉटन। जी। तो ऑर्गेनिक कॉटन कहाँ मिलेगी? वो सबसे बड़ा एक ही नाम था, भारत। तो इसलिए वो यहाँ भारत में आए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में घूमे और इधर-उधर उन्होंने मुलाकात की, लेकिन आखिर में उनको किसान के पास आना पड़ा, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾस ਆਏ? क्योंकि प्रोडक्शन तो किसान करता है। हाँ जी। तो उसी नाते फिर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने वाले किसानों से भी मिले और वो हमारे यहाँ भी आए। तो मैंने उनको अपना कपड़ा, हमारा जो प्रैक्टिस है और वो सब दिखाया, और मैंने अपना जो कलर्ड कॉटन था, खाकी नरमा था, वो भी उन्हें दिखाया। तो उसको देखते ही वो जो ओनर थी लड़की, वो बड़ा एकदम से एक्साइटेड हुई और उसने पूछा कि हाउ मच कलर्स हैव यू? तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास ये अभी एक ही नेचुरल। हाँ जी, हाँ जी। वाइट है तो ये। तो वो लड़की समझ गई थी उस बात को कि अगर कलर्ड कॉटन होगा तो डाइंग प्रोसेस कम होगा, और डाइंग प्रोसेस जो है कपड़े के लिए, वो खुद बहुत ज़्यादा केमिकल कंज्यूम करता है, पॉल्यूशन भी करता है, पानी की वेस्टेज भी है। तो वो लड़की चाह रही थी कि और अगर रंग होंगे तो ये डाइंग प्रोसेस हट ये खत्म जाए, हो जाए। तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सेफ भी रहेगा और अलग वैरायटी मिलेगी। जी। तो उसी बात से चाहते हुए हम भी कोशिश कर रहे थे कि दूसरे रंगों का भी मिले। तो मुझे करीब 4 साल तक कोशिश करते करते पिछली साल कुछ ग्रीन कलर कॉटन के बीज भी मिल गए। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਆ? बिल्कुल लगाया। ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ?
हुई भी है, और उसका मैं आपको धागा और वो भी दिखा सकता हूँ आपके हाँ पास। जी, बाद आप देख लेंगे। हाँ जी, जी, तो ग्रीन कलर कॉटन भी। क्या बात है, तो बहुत बड़ी गल है। जी, और अभी हम चाह रहे हैं एक लाल रंग में भी कॉटन है, और इंडिगो कलर में भी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਕਾਟਨ ਹੈ, जी, ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, खाकी एक ਇੱਕ एक ਗ੍ਰੀਨ। गोल्डन कलर भी है जी। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟਨ जी, और ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी, और हरे रंग का भी ਕੀ नरमा ਬਾਤ ਹੈ, पे। ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ ਕਾਟਨ ਹੈ। जी जी। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮਾ ਹੈ? नहीं जी, नरमा है। ਨਰਮਾ ਹੈ। जी, ਨਰਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕਲਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। हाँ, पंजाब में तो अभी तो मैं ही हूँ, बाकी हमारी मतलब यूनिवर्सिटी के पास, या जो हमारे सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट है हाँ नागपुर हाँ में, जी, हाँ जी, हरियाणा में सिरसा में है, हाँ जी। उनके पास है। और कलर कॉटन पर बम्बई में सिरकोट जो है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। महाराष्ट्र में वर्धा में ही सेवाग्राम में भी वो अपना कलर कॉटन पैदा कर रहे हैं। तो वो हमारा जो नेचुरल है वो कर रहे हैं, पर अभी तक इसको इतना बढ़ावा नहीं मिला। क्या बात, अब बढ़ावा देनी आई है तो। नहीं, अब लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। हाँ जी। अब मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਟਨ ਵਰਤੋ। देखो, जो कुदरत से उलट जाके अगर आप बीटी कॉटन बीज पैदा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर इफेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ जी, अगर एनवायरनमेंट को कर रहा है तो एनवायरनमेंट से हमारे पर भी आएगा। तो इसी तरह से कपड़ा आप जो पहन रहे हैं, पहले हमारे बुजुर्गों का मतलब कहना था, मोटा पहनना और मोटा खाना। क्या दोबारा कहो। मोटा पावना हाँ जी, और मोटा खाना। हाँ जी, मतलब कपड़ा जो है अपना गर्मी लंबी है, हाँ जी। तो इस करके मोटा कपड़ा अगर आप पावांगे तो वो गर्मी ਨੂੰ ज़्यादा ਆਪਾਂ ਨੂੰ जिਵੇਂ खद्दर सी, खद्दर। खतर दी। तो दूसरा एक और भी है मतलब खूबी, जो अपना चरखा से धागा तैयार हो रहा है, वो उसमें ट्विस्ट बहुत कम होता है। हाँ जी, जब आप उसको पहनेंगे थोड़ा सा गीला होगा तो उसका ट्विस्ट खुलते हैं। ट्विस्ट खुलने से उसमें मतलब एरेशन के लिए गैप ज़्यादा बढ़ गए, तो आपके शरीर को वो ठंडा रखेगा, हवा लगती रहोगी। हवा लगेगी। दूसरा, वो पसीना ज़्यादा सोखेगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ और ਕੀਤਾ। सर्दियों में वही सूती कपड़ा जो है, जब उसका धागा ट्विस्ट खुलेंगे तो वहाँ पर एयर बबल्स उसमें बन जाएंगे। वो आपके बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगा, और बाहर की जो ठंडी हवा है वो आपके शरीर को नहीं। ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। बिल्कुल। क्या बात है। तो हमारा अब ये जो कपड़ा है, आप बाजार से जो टेक्सटाइल से तैयार हुआ कपड़ा लेंगे, उसमें आपका कुछ धुलाई के बाद मतलब ये कॉलर हाँ जी, और कफ जो है, फट जाते हैं। यहाँ से कपड़ा फटना शुरू होता है, हाँ जी, क्योंकि वो बारीक कपड़ा तैयार करने के लिए धागे को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दिया जाता है पतला करने को। हाँ जी। तो जितना उसको ट्विस्ट ज़्यादा होगी उतना ही वो धागा सख्त होगा। तो सख्त होने की वजह से वो आपका टूटेगा भी। कॉर्नर से जल्दी फटता है। लेकिन ये जो अपना धागा है इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होती, तो इसमें लचक भी ज़्यादा है, इसलिए इसका मतलब घिसाई भी कम होती है। ਅੱਛਾ जी ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? बिल्कुल सर। ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ बिजनेस। और जिन लोगों ने इसको एक बार पहन लिया, हाँ जी, उसके बाद उनके विचार ख्यालात ही बदल गए, अच्छा। और वो चाहते हैं कि दोबारा से हर बार हम जब भी कपड़ा पहने यही कपड़ा पहने।
तो इसका एक छोटा सा मैं मतलब उदाहरण देना हाँ चाहूँगा। जी, हाँ जी, हाँ शुरुआत में जब हम कपड़ा बनवा के घर लाए, तो मेरे साथ जो काम करने वाले या मेरे टीम मेंबर्स थे, जी, उन्होंने कहा कि ये कपड़ा तो हम भी पहनेंगे भाईजान। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि हम पहनने के लिए ही लाए हैं, हम नहीं पहनेंगे तो दूसरा क्यों पहनेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वो यहाँ से 10 मीटर कपड़ा लेके गए भी मैं कुर्ता पजामा बनवाऊंगा। तो गाँव में जो सिस्टम है कि दर्जी घर आके कपड़े सिलता है, अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਹੈ? अभी बिल्कुल है जी। तो वो घर आके जब दर्जी कपड़ा सिल रहा था, तो उसमें काफ़ी कपड़ा बच गया। तो उन्होंने अपनी बच्ची थी छोटी पोती, तो उसके लिए भी कमीज पजामा सिलवा दिया। वो बच्ची बोलना नहीं जानती थी, तब तक बोलना सीखी नहीं थी। हाँ जी, पर जब उसको नहलाते और वो देखती कि आज दूसरा कपड़ा पहना रहे हैं, तो वो नहाना नहीं चाहती थी, रोती भी थी। अच्छा, उसको अच्छा नहीं महसूस होता था। हाँ जी, लेकिन जिस दिन उसको लगता कि अपना घर वाला कपड़ा पहना रहे हैं, हम्म, वो खुशी खुशी से नहा के वो कपड़ा पहन के खुश होती थी। मतलब जो बच्चा बोल नहीं सक अभी सीखा, तो आप मानिए उसको कोई सिखा थोड़े ही रहा है। वो उसकी खुद की फीलिंग थी, उसके शरीर को वो कपड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए वो खुश होती थी उससे। क्या बात है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, जी। तो शुरुआत में जिन लोगों ने लिया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। रिपीट किया और आज भी कर रहे हैं, और वो ये कहते थे कि जब भी नहाते हैं, तो मन ये करता है कि नहाने के बाद दोबारा यही कपड़ा पहने। अच्छा, मतलब शर्ट अगर है हमारे पास, तो 2-3 शर्ट हों, तो मतलब हम उनको अदल-बदल करके पहनते रहें, उनका ऐसा विचार है। यहाँ से मेरे पास आने वाले कस्टमर ही थे, उन्होंने अपने एक दोस्त के लिए बैंगलोर यहाँ से कपड़ा लेकर भिजवाया। हाँ जी, तो उनके दोस्त ने जब वो कपड़ा सिलवाया और पहना, तो उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग भी थे, हाँ जी, क्योंकि सलेम और उधर साउथ में जो है वहाँ हाँ जी, हाँ इंडस्ट्री है। काफ़ी काम होता है। हम्म, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग ही उनके फ्रेंड सर्कल में थे। तो उन्होंने बताया कि वो मुझसे पूछते थे कि ये कपड़ा जो पहन रखा है ये कहाँ से आया है, कहाँ से लाए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी यूनिकनेस बना के रखने के लिए मैंने उनको नहीं क्लियर किया कि ये कहाँ से आया। हाँ, लेकिन अभी जो है मैं आपका काम जो देखा है, उसके लिहाज से मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये कपड़ा पंजाब से आया है। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ नहीं, ਕਾਟਨ, नहीं, ਕਾਟਨ ਪੈਦਾ, और भी किसान हैं। नहीं नहीं ਕਾਟਨ जो पैदा कर रहे हैं। हाँ, कॉटन पैदा करने वाले किसान काफ़ी हैं, अच्छा है, क्योंकि अकेले से इतना वॉल्यूम तैयार करना पड़ा। शुरुआती पहले ਤੁਸੀਂ हाँ, मतलब हमने शुरुआत में अपनी प्रोडक्शन जो थी, उससे कपड़ा तैयार करवा लिया था। बहुत सारे लोग जो थे, वो पैदा तो कर रहे थे, लेकिन कपड़ा बनवाने का कोशिश नहीं की थी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ हाँ जी, ਇਹ जी, ਤੁਹਾਡੇ जी। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो अब आप जैसों की मेहरबानी से मतलब लोगों को हाँ जी, ये हाँ, पता लग ही गया या जो सर्कल में है, हाँ जी, तो वो टेलीफोन पर बात करते हैं, हाँ जी, व्हाट्सएप पर मतलब मैसेज करते हैं, और यहाँ से हमारे पास जो अवेलेबल है रंग, डिज़ाइन या उनकी जो ज़रूरत है, वो बताते हैं, और उसके लिहाज से उनको कोरियर से बाय पोस्ट भेज दिया जाता है। जी, और बहुत सारे लोग तो जो है वो खुद यहाँ आके ले रहे हैं। अभी पीछे फिलीपींस से, मनीला से एक फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि भई आपका कपड़ा जो है उसके बारे में हमने सुना और हम वो कपड़ा लेना चाहते हैं। तो उनके अपने रिश्तेदार थे यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट फ़तेहगढ़ साहब में, हाँ जी, तो उनका उन्होंने मतलब एड्रेस दे दिया, और जो-जो कपड़ा उन्होंने माँगा था,
वो बाय पोस्ट उनके पास भेज दिया गया। हम्म। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ काम करके खुश हो ਹੁਣ? बिल्कुल, जब परमात्मा ने काम सौंपा है, हम्म। और जो सीधी सी है कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल खुशी होती है। ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। खेती में सभी तरह की जो फसलें होती हैं, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस में खास है, मोनोकल्चर नहीं होती, मल्टी क्रॉप पैटर्न होता है, क्रॉप रोटेशन बदलता रहता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ बाग भी है, गन्ना भी है, धान है, नरमा कपास है, ਸਰੋਂ है। मतलब दालें हैं, तेल बीज है, अनाज है, सब तरह का प्रोडक्शन हम करते हैं। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ये सब बुजुर्गों का दिया है। कितने साल हो गए? अपना जो ये हमारा इलाका जो है, ये महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद, हाँ जी। जब पंजाब में विदेशी गोरों का होल्ड हो गया था, हाँ जी। तो उन्होंने सरकार चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरी है पैसा, हाँ जी। रेवेन्यू आए। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने ये गैर आबाद इलाका जो है वो आबाद करना शुरू किया था। और उसी के अंतर्गत हमारे बुजुर्गों ने अ, अपना जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी 1857 में, हाँ जी। उससे पहले यहाँ आके 1853 में ये गांव, ये जगह खरीद की और यहाँ पर गांव बसाना शुरू किया, गांव को आबाद किया। ये गांव का नाम भी ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है? हाँ, बुजुर्गों का ही रखा है, पर ये भी एक माइग्रेट करके आने वाले पक्षी थे, अच्छा जी। उनके नाम पर रखा की गया। नाम है पूरा? गांव का नाम ढींगावाड़ी है जी। हाँ जी। तो वो मतलब सारस प्रजाति के पक्षी थे जो साइबेरिया से यहाँ आते थे, और सर्दियों में वो पानी की जोहड़ पर रुकते थे। तो उनकी टांगें ऊंची लंबी होने की वजह से उनको पहले लमढींग बोला जाता था। हाँ। वो लमढींग से धीरे ढींगा धीरे वाली बढ़ गई। ढींग कहने लगे। हाँ जी। तो जो लोग पशु चराने वाले थे वो आपस में एक दूसरे से बात करते कि कहाँ रुके हो या पानी कहाँ मिलेगा। तो हमारे गांव में जो पानी की 2-3 जोड़ी थी, तो वहाँ पर वो जानवर आते थे, और उन्होंने उस जोड़ी को ढींगा वाली जोड़ी बोलना शुरू कर दिया। वो तो ढींगा वाली पै तो गई। उसके बाद जब यहाँ गांव बसाया गया तो गांव का नाम ढींगा वाली रखा गया। ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ? 125-130 साल पुरानी है। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ? जी जी, क्योंकि कुछ टाइम तो मतलब यहाँ आने के बाद एस्टेब्लिश होने में, हाँ, टाइम लग एडजस्ट गया। करने में, कुछ कमाई करने में भी लगा। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ? याद तो है जी। जी। यहाँ सबसे पहले गोरिया नू दफा करो हाँ जी। का यहाँ की लोकेशन है। उसके बाद फिर चन्ना मेरिया हुई, हाँ जी। बीच में फिर सरदार करतार सिंह सराभा पर बायोपिक तैयार हुई, उसका भी है। हाँ जी। और उसके बाद फिर ये अपने हमारे पड़ोसी है और पुराने पारिवारिक संबंध भी हैं, गुगू गिल। गुगू गिल, हाँ जी। उनका वो वेब सीरीज थी शिकारी और हाँ। शिकारी 2, हाँ जी। वो भी यहाँ की लोकेशन है। पिछले साल दिसंबर में 4 दिसंबर को अपने पंजाब के जो बहुत फेमस आजकल सिंगर हैं दलजीत दोसांझ, हाँ जी। उनका भी एक नया गाना जो रिलीज हुआ है, उसकी भी शॉट्स जो है वो यहीं के हैं। क्या बात है। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ
ਪੌਣੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਣਤ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा ये आपसी रिश्ता इसी तरह से और आगे लंबा जी, चलता रहे। शुक्रिया। धन्यवाद।